Assalamu alaikum, post-student students. How are you? I hope you that all will be fine. Sumaya, my voice is clear. Sumaya, my voice is clear. मेरी आवाज़ आ रही है बेटा आपको? It means कि नहीं है ना? वासलाम जी बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? सुमैया शाहिद? Yes, ma'am. Thank you. No, thank you, Maha. Okay. Yes. Okay, thank you, Sumaya Shahid. जस्ट वेट अ मोमेंट बेटा, आपको अभी स्लाइड्स अपलोड हो जाती हैं. आई थिंक थोड़ा सा नेटवर्किंग में इशू है. यस, आई लिसन यू बेटा. आई एम फाइन, थैंक यू. Due to some busy schedule, that's why I didn't class yesterday. बेटा थोड़ा सा इशू. और कैसे हैं आप लोग सब? ठीक है आप लोग? स्टडी कैसी जा रही है? ठीक जा रही है स्टडी आप लोगों की? जी, सुमैया शाहिद. Wow, very good. Today you are auscultate the chest of patients. I hear ronchi. Well done in one lungs, but other lung sound was normal. It means you differentiate after you are learning. You differentiate between normal and adventitious sounds. Well done बेटा, well done. देखा, यही होता है कि पढ़ने का आपको, कि आप उसको अंडरस्टैंड कैसे करते हो, आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हो. गुड. हेलो जी बेटा. वेलकम आरिफा, शाजेब. बेटा थोड़ा अपलोडिंग में टाइम लग रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा. जी, सुमैया, शहजाद. काफ़ी दिन मिल गए हैं आप लोगों को. ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स? जी. जी बेटा, आप लोगों ने अपनी ड्यूटीज मैनेज कर ली हैं कि नहीं अभी तक? जी इंशाल्लाह 15 से अभी तक सर्कुलर नहीं आया. हम वी आर वेटिंग स्टिल सर्कुलर फ्रॉम SMDC, SIHS, because we are work under umbrella SIHS, so we are follow the instructions, all of instructions. We are equally SMDC, SNC and allied SNC. That's why little bit taking a time. Inshallah tomorrow I will confirm after officially letter are received. Okay. Maybe no need to COVID test. Okay. तो यहाँ लोडिंग में आई थिंक इशू थोड़ा सा आ रहा है, इस वजह से आपको. जी, प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था? वी विल डिस्क्राइब
जी बेटा, प्रीवियस की हमने क्या पढ़ा है? ग्रेजुअली जब तक स्लाइड्स अपलोड हो रही हैं हम उसको डिस्कस कर लेते हैं कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस किया था. ओके, प्लीज टाइप योर कमेंट्स. We are discuss about mental status examination. Okay. जी मरियम, सुमैया शाहिद. लास्ट लेक्चर में बेटा क्या पढ़ा था आप लोग? Cranial nerve, how to assess the cranial nerve, how to assess the function of sensory and motor function. जी जी बेटा, who will describe previous lecture? जी शहजाद, सुमैया, अरफा, खतीजा. जी बेटा, आप एक्सप्लेन करें कि आपने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था. जी सुंदर. ओके, cranial nerves, very good. आई थिंक अपलोडिंग में इशू आ रहा है बेटा, थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा. आई विल ट्राई अगेन. जी, हम डिस्कस कर सकते हैं इजीली कि आप जो है वो. जी सुमैया, क्रीनियल नर्व्स, नर्व सप्लाई, मोटर फंक्शन. ओके, गुड. Good descriptions. And area, we are examining the area of neurological assessment which we are learned from motor functions, how to observe a gait and balance, administrations of the Romberg test, administrator of the finger to nose test, rapid alternative movements. And also we are discuss grading descriptions of muscle strength and how to grade the muscle strength. And also we learn about how to test the upper extremities. Okay, yes, and test the strength of lower arm flexions. And other points. Ji students, I am still waiting uploading the lectures because last lectures we will discuss regarding motor function assessment. So first of all we test the upper extremities and lower extremities. Finally uploaded the lectures. Okay. जी बेटा, अपर एक्सट्रीमिटी में क्या देखा था आपने? टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ लोअर आर्म फ्लेक्शंस. जी एक्चुअली जो मैंने I think here is a issue regarding slides.
is a something error. Okay. How many indications we are assessing the neurological assessment? Mental status examination I will describe gradually. Intellectual, new learnings, and how to assess the alertness, comma. जी बिल्कुल आलिया, आपका कॉलेज ओपन ज़रूर होगा डेफिनेटली, जैसे ही गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है बेटा एज इट इज़ ही आप लोगों का भी कॉलेज ओपन होगा। 15 को कंफर्म है, आप लोग के क्वेश्चन काफ़ी आ रहे हैं, इसलिए मैं आपको जो है वो उसका डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ, ठीक है। 15 को इंशाल्लाह कॉलेज ओपन होनी है, बट हमें ऑफिशियली थोड़ी से SOPs को जो ऑफिशियली SIHC की तरफ से जो हमें ऑर्डर्स आने हैं वो अभी रिमेनिंग है। दैट्स व्हाई वी विल वेटिंग। इंशाल्लाह टुमारो we will receive officially orders, then properly I will inform to all the students. Okay, don't take tensions. I think you are very enthusiastic and very excited to come on SNC. Yes or no? जी अभी बोला ऐसा ही है। जी अदीला, कि आप लोग बहुत एंथुसियास्टिक हो कि आप लोग जल्दी से जो है वो हम कॉलेज चले जाएं, ऐसा ही है। क्योंकि आप लोग ड्यूटीज कर करके थक गए हो। और ड्यूटीज आपने मैनेज कर ली है बेटा आप लोगों ने? जी ना सोनिया, ड्यूटीज मैनेज कर ली है आप लोगों ने? जी वेलकम हिना, सोनिया, फातिमा। आप लोग पढ़ भी रहे हो कि नहीं? क्योंकि आते ही आपके, मुझे और किसी का तो पता नहीं, मैं अपने टेस्ट सेशन स्टार्ट करूँगी और स्किल लैब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा कोर्स आउटलाइन ऑलमोस्ट जो है वो क्लियर हो गई हुई है, हमने सब पढ़ लिया है। और इन केस किसी रिवीजन की ज़रूरत होगी तो पहले हम इन जितने भी हम सिस्टम पढ़ चुके हैं उसकी हम प्रैक्टिस करेंगे, वीडियोस देखेंगे, स्किल लैब में हम लोग जो है उस पर वर्क करेंगे। देन जो है क्योंकि आते ही आपको मे भी हम लोग क्लिनिकल प्लेसमेंट पे ही भिजवाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, क्योंकि मैं साथ साथ रिव्यू करवा रही हूँ तो आप लोगों को बता, कुछ ऐसी स्लाइड्स थी जो कि मैंने आप लोगों की स्नैप पे एक्टिवेट की हुई थी, अपलोड की हुई थी, तो उसमें कुछ जो है मैंने लिंक्स भी दिए हुए थे, ऐसे ही है ना। अगर तो आप लोगों ने उसको रिव्यू किया है, पढ़ा है स्टूडेंट्स ने, तो डेफिनेटली आपने उन लिंक्स को जो है वो यूट्यूब लिंक्स को आपने देखा होगा, उसको रिव्यू किया होगा अपनी असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़े हो तो उसमें हम किस तरह देख सकते हैं, ठीक है। सो आई थिंक this is the end point of last lectures of discussions. Test the strength of the thumb oppositions. This is already we are discussing. Test the adductions of the legs by placing your hands on the inner thigh of the patients and asking them to bring both legs together. The test the adductors of the medial thigh. Adductions of the hip is mediated by the lumbar vertebra 2, L3 and L4 nerve roots. ओके, ये हम इसमें सबसे पहले तो हमने देखा कि हम अपर एक्सट्रीमिटीज को कैसे असेस करते हैं, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ को, क्योंकि नंबर हम मोटर फंक्शन असेस कर रहे हैं। मोटर फंक्शन में हमने देखा कि हम मसल स्ट्रेंथ को किस तरह ग्रेडिंग करते हैं, ऐसे ही है। तो ग्रेडिंग के बाद हमने देखा कि हम उसके टेस्ट किस तरह अपर एक्सट्रीमिटीज को कैसे करते हैं। अपर आर्म की स्ट्रेंथ देखेंगे हम, लोअर आर्म की, फोर आर्म जिसे हम कहते हैं वो देखेंगे, और हम हैंड्स की भी देखी। लोअर आर्म में हमारा क्या आ जाता है, फोर आर्म जिसे हम कहते हैं, उसमें हैंड्स की भी हमने स्ट्रेंथ देखी, इवन दो कि हमने थंब और फिंगर्स की स्ट्रेंथ देखी। अब हम देखते हैं कि लोअर एक्सट्रीमिटीज में क्या क्या चीज़ आ जाती है। तो इसमें हम एडक्शन और अबडक्शन, एडक्शन आपको डेफिनेटली आपको पता है ऐड करना, ठीक है। एडक्शन जो है ऐड की तरफ है टुवर्ड द बॉडी। तो इसी तरह ये जो टेस्ट बताया गया है
कि एग्जामिनर जो है वो क्लिनिशियन जो है वो अबडक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको जो है वो अपार्ट कर रहा है, और आपने पेशेंट्स को इंस्ट्रक्ट क्या करना है कि आप उसको दो अपने बॉडी की तरफ दोनों को टुगेदर करने की कोशिश करें, ठीक है। इसी तरह आपने देखा कि टेस्ट द एडक्शंस ऑफ द लेग्स by placing your hands on the inner thigh of the patients and asking them to bring both legs together. Is it clear? कि आपने उनको कहना है कि दोनों लेग्स को मैं अपार्ट कर रहा हूँ, सेपरेट कर रहा हूँ, अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेंथ लगानी है। कि ये कीप इन माइंड के वेरी फर्स्ट डे मैंने आपको जब मस्कुलर स्केलेटन पढ़ा रही थी स्ट्रेंथ असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने अपोजिट डायरेक्शंस में क्या करनी है, स्ट्रेंथ अप्लाई करना है। आपने उसको जो है वो सेपरेट करने की कोशिश करनी है और पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करना है कि आप उसके अगेंस्ट अपोजिट जो है वो फोर्स अप्लाई करें। इज इट क्लियर? तो हम इससे अगर वो फोर्स अप्लाई कर रहा है उसमें वो जो है वो कंफर्टेबल, आपने देखना है दोनों तरफ उसकी इक्वली फोर्स है या कि उसमें थोड़ा सा डेविएशन है। एक तो ये देख लेना है और दूसरा आपने देखना है कि L2, 3 and 4 नर्व रूट्स जो है वो इंटैक्ट है, कोई इसमें इम्पेयरमेंट। डेफिनेटली जब पेशेंट फोर्स इक्वली अप्लाई करेगा तो उसमें ये चीज़ जो है वो आपको नॉर्मल जो है वो लेबल करने में हेल्प होगी। ओके, हियर इज आल्सो टेस्ट द अबडक्शन, ठीक है। आप उसको क्या करते हो, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करते हो बाय प्लेसिंग योर हैंड्स ऑन द आउटर थाइज एंड आस्किंग देम पेशेंट टू मूव देयर लेग्स अपार्ट। आप उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, मतलब दोनों को इकट्ठा करोगे और वो उसके अपोजिट डायरेक्शन करेगा, ठीक है। तो इसमें हम स्ट्रेंथ किसकी देखेंगे, मोस्टली हम ग्लूटियस मैक्सिमस और ग्लूटियस मिनिमस मसल्स की बात कर रहे होते हैं। तो इसमें L4 और 5 और S1 सैक्रल वन नर्व रूट्स को हम एग्जामिन कर रहे थे। इज इट क्लियर? जी क्लियर है बेटा आप लोगों को कि हमने कोई भी डायरेक्शन में कोई भी हमने मसल्स की स्ट्रेंथ देखनी है तो उसमें हमने अपोजिट डायरेक्शन में आना है। डेफिनेटली टेस्ट अबडक्शन और एडक्शन। एडक्शन टुवर्ड द बॉडी आपने ऐड करने के बाद है अबडक्शन अवे फ्रॉम द बॉडी। इसमें आपको दोनों आपने देखा थाई की आउटर साइड पे जो है क्लिनिशियन या जो भी असेसर है उसका अपोजिट साइड पे हैंड्स है, ठीक है, आउटर थाई पे है, और आपने पेशेंट्स को बताना है, उसे पूछना है कि आप मूव करो दोनों लेग्स को अपार्ट करें। आप अंदर की तरफ फोर्स अप्लाई कर रहे हो और उसने बाहर की तरफ फोर्स अप्लाई करना है अपोजिट डायरेक्शन में, इज कॉल्ड अबडक्शन। इज इट क्लियर? ओके जी, होल्डिंग द बॉटम ऑफ द फुट, क्योंकि वी आर असेसिंग द लोअर एक्सट्रीमिटीज, वी आर असेसिंग द थाई और लेग्स की अपर हमारे जो है लॉन्ग बोन्स है ना, हमारी अपर जो है हमारे थाई की हमने स्ट्रेंथ देखी और यहाँ हमने बॉटम ऑफ द फुट की बात की। आस्किंग द पेशेंट टू प्रेस डाउन ऑन द गैस पेडल as hard as possible. Repeat with the other foot and compare. This test the gastrocnemius and soleus muscles in the posterior compartment of the lower leg. Ankle plantar flexion is innervated by the S1 and S2 nerve roots by the tibial nerves. Is it clear? जी, इसमें आपने पेशेंट को क्या करना है, नॉर्मली अंडरस्टैंडिंग के लिए होल्डिंग द बॉटम ऑफ द फुट क्या मीन्स कि आपने जस्ट फिंगर के नीचे आपने पेशेंट्स के अपने हैंड को होल्ड करना है, ठीक है, हैंड से अपने पेशेंट के फुट को होल्ड करना है, उसको कहना है कि आपने जितना फोर्स अप्लाई कर सकते हो मेरे हैंड के ऊपर अप्लाई करें, क्योंकि हमने उसकी स्ट्रेंथ देखनी है कि आया कि उसके बॉटम की फुट की स्ट्रेंथ भी इक्वली ही है या नहीं है। और इसी तरह आपने रिपीट करना है दूसरे फुट पे और दोनों को आपने कंपेयर करना है। ये गैस्ट्रोकेनेमस और सोलस मसल जो होते हैं सोल के, ठीक है, उनको हम देख लेते हैं पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लोअर लेग कि आया के जो है वो लोअर लेग की जो है वो स्ट्रेंथ इक्वली ही है नहीं, जो कि नर्व रूट गुजर रहे हैं हमारे और टिबियल नर्व्स पे रूट गुजर रहे हैं, वो कौन से हैं, सेक्रल की बात हो रही है, इनर्वेटेड बाय द S1 और S2। एंकल प्लेंटर फ्लेक्शन भी इसको हम कहते हैं, ठीक है, वो प्रेस करेगा, आपको पता होगा कि फोर्स उसकी इक्वली अप्लाई हो रही है या नहीं। जी, इज इट क्लियर? माय वॉइस इज क्लियर स्टूडेंट्स? स्लाइड विजिबल है आपको? कोई क्यूरी तो नहीं है बेटा? ओके, वेल, so to complete the motor exam of the lower extremities, ask the patient to move the large toe against the examiner resistance up toward the patient's face. Okay. The extensor hallucis longus muscles is almost completely innervated by the L5
nerve roots. The test is extensor hallucis longus muscles. Hallucis longus muscles. What do you understand about? कि इसमें स्पेशली हम कंप्लीट मोटर एग्जामिनेशन, क्योंकि बिग डो की अगर हम बात कर रहे हैं तो बिग डो में क्या चीजें आ जाती हैं आपकी? ये कौन से मसल्स हैं? हेलोसिस लॉन्गस मसल्स कौन से हैं बेटा? आई नीड योर पार्टिसिपेशन। जी, क्या होते हैं बेटा? जी बेटा, कौन कौन से मसल्स हैं हमारे ये? जी, वेलकम नौरीन। जी बेटा, कौन कौन से मसल्स हैं? ये कहाँ के मसल्स हैं? हमें अभी जो बात हम कर रहे हैं ये कौन से मसल्स हैं? जो हमने बात की कि आज द पेशेंट टू मूव द लार्ज डो, कि आपने हमेशा फोर्स अप्लाई करनी है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही है, यही बताया आपको कि आपने पेशेंट को कहना है कि आपने बिग डो को जो है वो आपने मूव करना है अगेंस्ट द एग्जामिनर रेजिस्टेंस। वो नीचे की तरफ प्रेस कर रहे हैं तो फेस की तरफ अपवर्ड, यही कहा अपवर्ड, अप टूवर्ड द पेशेंट फेस, कि आपने अपनी फेस की तरफ उसको एक्सटेंड करना है। तो उसमें हम रेजिस्टेंस चेक करेंगे। और ये हम एक्सटेंसर जो है वो कौन से लॉन्गस मसल्स की बात कर रहे हैं कंप्लीटली, जो कि इनोवेटेड होती है L5 नर्व रूट्स की। और ये टेस्ट एक्सटेंसर हेलोस लॉन्गस मसल्स के लिए कहते हैं। ऑलमोस्ट इसमें क्या होती हैं? एक्सटेंसर हेलोकस लोसर मसल्स कहते हैं। ये 3 मसल्स होती हैं, ठीक है। कौन से होते हैं? ये 3 मसल्स होते हैं जो कि एक्सटेंड होते हैं मीडियल टू फेब्यूला पर, ठीक है। फेबुला फेबुलस की बात हो रही है, डिस्टल फेलेक्स। और ये मसल्स क्या करते हैं? बिलोंग टू द इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द लेग टुगेदर। जब हमारी लेग्स टुगेदर होती हैं तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, इंटीरियर कंपार्टमेंट में होती हैं। इसके 3 अदर मसल्स भी होती हैं एक्सटेंसर के लिए, जो कि डिजर टोरस के लिए होते हैं, ठीक है। और ये बेस पे होते हैं, प्लैनेक्स पे और ग्रेट बिग टो पे। इसमें मेटाटार्सोफैरिंजियल और एक्शन इनका क्या है हॉलस मसल्स का? मेटा, जी बेटा, मेटाटार्सोफैरिंजियल एंड इंटरफैरिंजियल का क्या होता है इनका? मेटाटार्सोफैरिंजियल, क्योंकि एंकल्स पे और हमारे लोअर पे जो है ना इनका अफेक्ट होता है। इज इट क्लियर? ओके, वॉइस नहीं आ रही जी फातिमा। एक्सटेंडर, बिल्कुल लॉन्गेस्ट मसल्स होते हैं, 3 मसल्स होते हैं और एक्सटेंडेड फ्रॉम द मिडल थर्ड ऑफ फेमोरस टू द डिस्टल फेरेंक्स ऑफ द बिग टो। एग्जैक्टली ओमेरा मैम, फ्रंट लेग्स के मसल्स को एक्सटेंसर लॉन्गेस्ट मसल्स कहते हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और इसमें हम मेटाटार्सल मेटाफैलेंजियल की बात करते हैं, ये हमारे वही चीजें हैं। जी मेरी आवाज नहीं आ रही बेटा फातिमा? प्लीज चेक योर इंटरनेट, आप अपना नेट चेक करें। जी, एरियाज ऑफ द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम असेसमेंट क्या है? एरिया ऑफ द न्यूरोलॉजिकल सिस्टम असेसमेंट। कौन कौन सी एरियाज को हम असेस करते हैं? मोटर फंक्शंस को, जिसमें मोटर फंक्शन में हम क्या असेस करते हैं? ऑब्जर्वेशंस ऑफ गेट एंड बैलेंस की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं हम, किसकी रोमबर्ग टेस्ट इसमें असेस करते हैं, फिंगर टू नोज टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हील टू शिन टेस्ट, ठीक है। और ऑब्जर्व करते हैं हम रैपिड अल्टरनेटिव एक्शन मूवमेंट, क्योंकि मोटर फंक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा बच्चों को टफ भी लगता है, तो आप लोग जो है उसको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है जी। क्या मोटर फंक्शन में हम क्या क्या देखेंगे, क्योंकि आपको टिप भी आना चाहिए। गेट एंड बैलेंस हम देखते हैं, उसमें रोमबर्ग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, फिंगर टू नोज टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं हील टू शिन, चिन देखते हैं, उसमें शाइन टेस्ट जिसे हम कहते हैं, और रैपिड अल्टरनेटिव एक्शन और मोमेंट्स देखते हैं, ठीक है। ओके जी, हियर इज अ गेट एंड बैलेंस। मोटर फंक्शन में हमने रोमबर्ग टेस्ट और गेट की भी बात की थी, ठीक है। आस्क द क्लाइंट टू वॉक अक्रॉस द रूम एंड रिटर्न। हम पेशेंट्स के एक पूछेंगे ताकि हमें कोई भी स्विंग है, कोई लिम्ब है, तो वो हमें क्लियर हो जाए कि उसकी स्ट्रेट वे में वो गेट है, कोई लिम्ब तो नहीं है,
कोई डेविएशन तो नहीं है राइट और लेफ्ट आपके वॉक में. इज इट क्लियर? ओके. Here is our Romberg test. How to perform a Romberg test? We are performing as a function of the Romberg test to assess the balance and coordination. Okay. Ask the patient to remain still and close their eyes for about 20 seconds. So be prepared to protect the client for falling. ठीक है. आपने be prepared रहना है patients को fall down से protect करने के लिए. Is it clear? Here is also clear image फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि हम पेशेंट्स को किस तरह होल्ड करेंगे और पेशेंट्स को जो है वो सबसे पहले स्ट्रेट पोजीशन में आप पेशेंट को कहा और जस्ट 20 सेकंड्स के लिए पेशेंट ने अपनी आईज को क्लोज रखना है और आप उसने खड़े होना है. ठीक है. तो आपने देखना पेशेंट राइट और लेफ्ट फॉल तो नहीं कर रहा. स्टूडेंट्स आर यू विद मी? थोड़ा साइलेंट हो गया है, या तो समझ आ रही है, ये बिल्कुल समझ नहीं आ रही. ऐसा ही है. जी गुड. आ रही है बेटा समझ? आर यू अंडरस्टैंड माय ऑल पॉइंट्स? जी जी क्लियर है. थैंक यू बेटा मेरा, आपने रिप्लाई किया, अदरवाइज तो सब सो रहे हैं लग रहा है मुझे. ऐसा ही है. ओके. Here is also interesting topic, finger to nose test. आरिफा थैंक यू बेटा, आप लोगों ने रिप्लाई किया. नौरीन थैंक यू, क्योंकि ये इनकरेजमेंट है, क्योंकि मैं यहाँ बोल रही हूँ यहाँ शो हो रहा है 22 स्टूडेंट्स. ठीक है. जब आप थोड़ा सा कमेंट्स में आप करते हो तो लग रहा है कि जैसे आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रही और मैं सिर्फ ब्लैंक्स पढ़ा रही हूँ. ऐसे ही है. ओके. अदीला नो मैम. व्हाट डू यू मीन नो मैम? इट मीन्स क्लियर है, कोई क्यूरी नहीं है. ओके थैंक यू. फिंगर टू नोज टेस्ट. नीलम बेटा मुझे आपका मैसेज मिला है. जी मैम थैंक यू बेटा. सॉरी आपका मैंने आई थिंक समटाइम ये है कि नज़र मेरे सामने उस वक्त जाती है कि नेक्स्ट मैसेज आ चुका होता है. नीलम आपके मुझे मैसेजेस मिल रही हैं. मैम आ रही है समझ? और जी मैम. नीलम जी मैम समझ आ रही है. ओके थैंक यू बेटा नीलम. ऐसा नहीं है कि मैं पर्पसफुली किसी का नेम अनाउंस नहीं करती. समटाइम ऐसे होता है आप कमेंट्स कर रहे होते हो तो आपका नेम थोड़ा पीछे चला जाता है, इसलिए मे भी मैं भूल जाती हूँ आपका नेम अनाउंस करना. ठीक है. अदीला आप भी, नौरीन, आरफा, सबकी मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं. जब नहीं मिलते तो मैं आप लोगों को कह देती हूँ. ठीक है. ओके थैंक यू. फिंगर टू नोज टेस्ट. Ask the client to extend both arms from the side of the body. Okay. Ask the client to keep both eyes open. Ask the client to touch the tip of the nose with right index fingers and then return to the right arm to an extended position. Ask the client to touch the tip of the nose with the left index finger and then return the left arm to an extended position. Repeat the procedures several times. Ask the client to close both eyes and repeat the alternating movements. Is it clear? Here is the finger to nose test procedure. How to test the finger to nose test. सबसे पहले आपने क्या कहना है कि पेशेंट्स को कहना है आपने अपने बाजू जो है वो एक्सटेंड करें. ठीक है. साइड ऑफ द बॉडी. और सेकेंडली फिर क्या करना है आपने पेशेंट को कहना है आप अपनी आईज जो है वो दोनों ओपन करें, क्योंकि हमने पेशेंट्स को डेमो देनी होती है. पेशेंट को हमने एक्सप्लेन करना होता है विद द आई ओपन. और देन जो है वो पेशेंट को आपने कहना है कि अपोजिट साइड पे, जैसे सपोज दोनों बाजू उसने एक्सटेंड किए, एक्सटेंड करने के बाद क्या किया उसको बताना है ओपन आई. आपके सामने क्लियर है कि मेरी फिंगर को टच करो यार. ठीक है. तो आपने अपने नोज पे लगाना है. ये आपने असेस कर लिया, नोज टू राइट इंडेक्स फिंगर. ठीक है. सेकेंडली आपने दोनों पेशेंट को एक्सप्लेन कर दिया कि आपने अपने दोनों बाजू एक्सटेंड करे और अल्टरनेटिव मोमेंट्स में. ठीक है. पहले आपने अपनी इंडेक्स फिंगर्स राइट वाली लगा लिया, फिर सेकेंडली आपने उसको एक्सटेंड कर लिया और आपने क्या किया आपने दूसरी फिंगर को इंडेक्स की. तो ये रैपिडली आप लोगों ने अपनी क्लोज आई के साथ करना है. ये प्रोसीजर आपने सेवरल टाइम करना है. तो आप कहोगे कि उसकी जो मोटर फंक्शन है वो इंटेक्ट है. इज इट क्लियर? आप लोग खुद से भी प्रैक्टिस कर सकते हो. ठीक है स्टूडेंट्स. मैं आपको यहाँ बता दूं कि आपने दोनों बाजू को ऐसे एक्सटेंड किया, आपने अपनी ये वाली फिंगर इंडेक्स फिंगर जो है आपने अपने नोज पे लगाई. अब सेकेंडली आपकी यहाँ से आ रही है. ठीक है. सेकेंडली आपकी क्या आ रही है,
ये सेकंड आपका राइट आर्म आपका यहाँ आ गया और दूसरा आर्म क्या हो गया आपका एक्सटेंड हो गया, ठीक है। इसी तरह आपने अपने अपोजिट डायरेक्शंस में क्या करना है, आपने अपनी रैपिडली जो है वो आई क्लोज के साथ, ठीक है। पहले आपने एक इंडेक्स फिंगर अपने नोज पे लगा ली और फिर सेकेंडली आपने लगा। इज इट क्लियर जी स्टूडेंट्स, आर यू विद मी? क्लियर है आपको? ओके, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस स्लाइड? कोई क्यूरी तो नहीं आपकी यहाँ? ऑल और क्लियर कि फिंगर टू नोज टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं? आपने बारी बारी पहले आपने एक आर्म की आपने राइट साइड की जो है इंडेक्स फिंगर आपने लगाई, फिर दूसरे को लगा दी जी बेटा। स्टूडेंट्स सॉरी फॉर इनकन्वीनियंट, आपके ही स्टूडेंट्स जो है वो कुछ सीनियर बैच के आए हैं, मुझे उनसे 5 मिनट के लिए बात चाहिए और थोड़ा सा आपको 5 मिनट वेट करना होगा, देन वी विल कंटिन्यू द टॉपिक, ठीक है। आप इसमें जो है वो थोड़ा सा आप इस स्लाइड को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो, क्योंकि आपने जो है वो फिंगर टू नोज टेस्ट, हाउ टू परफॉर्म अ फिंगर टू नोज टेस्ट आप उसमें आप लोग करोगे, ठीक है। तो 5 मिनट्स की मैं आपको
जी हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी मैं वापस आ गई हूँ भाई। कैसे हैं आप लोग? कि सब सो गए हैं? जी हाउ टू असेस द cerebellar functions heel to shin test. How to perform a heel to shin test? Are you with me students? Are you listen my voice? Okay. जी बेटा, how to assess the cerebellar functions? Cerebellar function is a continuum. Last slide we will discuss regarding gait and coordination and how to examine the balance. Okay. Heel to shin test. Okay. Observation of a rapid alternative action movements. Ask the client to sit with the hand placed palms down on the thigh. Ask the client to return the hand palms up. Ask the client to return the hands to palm down positions. Ask the client to alternate the movements at the faster pace. ठीक है, इसमें हम ऑब्जर्वेशन रैपिड अल्टरनेटिव मूवमेंट में हम किस तरह असेस करते हैं? ठीक है, किस तरह आप असेस करते हैं ऑब्जर्वेशन में? अपने पेशेंट को कहना है आप सामने सीधे सिटिंग पोजीशन में बैठे और अपने हैंड को जो है वो पाम को जो है वो मतलब हैंड अपने प्लेस करें जिस तरह हम ये सामने लिख रहे हैं कि पेशेंट सिटिंग पोजीशन में है, चेयर पे पेशेंट को बिठा लिया है, दोनों आर्म से उसको हैंड से उसको कहना कि आपने जो है वो नीज के ऊपर रखें। ठीक है, डाउन टू द थाई, थाई के ऊपर आपने रख लिया और फिर आपको कहना है पेशेंट्स को आप रिटर्न करें पाम्स अप। तो क्या आपने कभी अपने हैंड्स को अप करना है और कभी डाउन करना है। प्रोनेशन और सुपिनेशन की जिस तरह हम बात करते हैं, दोनों हैंड्स पे रखा तो आपने क्या पेशेंट को कहा कि आप प्रोन किया है, अब आपने अप करना है। ठीक है, और रैपिडली आई क्लोज के साथ आपने इस तरह उसकी मूवमेंट्स करनी है। ठीक है, थाई के ऊपर। Ask the client to return the hands to a palm down position. Ask the client to alternating the movement as faster as fast. Is it clear? Okay. जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट वीक में देखेंगे इंशाल्लाह। वी विल कंटिन्यू ऑन मंडे। ओके जी, हीरा जुल्फकार एट द एंड मोमेंट पे आपने ज्वाइन कर लिया है जी। तो रेस्ट ऑफ लेक्चर थोड़ा सा स्टूडेंट्स का इशू था, तो इस वजह से मुझे जल्दी वाइंड अप करना पड़ा है बेटा, अदरवाइज मैंने 4 o'clock तक जो है वो इसको कंटिन्यू कर दिया। ठीक है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रिमेनिंग लेक्चर जो है वो हम नेक्स्ट देखेंगे। जी नीलम, ओके। एक्चुअली मैं तो काफ़ी रिदम से जा रही थी मगर कुछ इश्यूज़ की वजह से अब मुझे वाइंड अप करना पड़ रहा है, तो आप जो है वो ओके, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह वी विल मीट ऑन मंडे। ठीक है, गुड लक। जी बेटा, अल्लाह हाफिज़। जी नीलम, मोबीन, हीरा, वेलकम बेटा आप लोग। और अभी मैं यहाँ वाइंड अप करना चाह रही हूँ क्योंकि नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करेंगे यहीं से। रैपिड अल्टरनेटिव मोमेंट्स हम देखेंगे कि एक्शन उसकी मोमेंट किस तरह है। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ओके, मुझे थोड़ा सा काम है इस वजह से जाना पड़ेगा।